The Defence Research and Development Organization DRDO successfully conducted a flight trial of its long-range hypersonic missile at Abdul Kalam Island, Odisha. According to DRDO officials, the missile, which operates at speeds greater than Mach 5, demonstrated significant advancements in missile technology. The trial, which involved precise trajectory and guidance systems, marks a major step forward in India's defence capabilities. The hypersonic missile is designed to be a game-changer in terms of speed and accuracy, enhancing the country's strategic defence posture. DRDO representatives expressed confidence in the success of the trial, citing it as a crucial milestone for India's indigenous defence development programs. One now. One now. BJP leader Kumpala Madhavilata, attending a Hindu Rashtra program in Mumbai, criticized Congress and MIM for allegedly undermining secularism and supporting religious boards like the Ulema, which she claimed sought to remove RSS from Maharashtra. She warned that such actions were detrimental to India's constitution and secular principles, accusing Congress of aligning with groups that undermine the contributions of figures like Savarkar and Shivaji Maharaj. Lata called on the people of Maharashtra to reject these forces and choose the path of unity and nationalism. I think that it's time that Maharashtra and Mumbai once for all would settle this kind of a fight that's been happening, not just in Maharashtra alone but the entire country, where we are finding insecurity about making our own identity here in this nation. We being Bharatiya and this being our nation, it's become a joke every time that we have to repeatedly tell that and re-emphasize that this is our nation. At this time I would say that Ulema board, which has come up so openly, the Islam religion board, who have nothing to do with that, which has nothing to do with the state or the state administration, either the politics, because so-called the great MIM, Congress, often talk about secularism. And once for all, let me tell the people of Maharashtra that secularism means if you have added the word secular in your constitution, in our constitution, then let me tell you that either Congress or any of these allied parties which are with Agadi, they should know that the Sarkar, the one who makes the government, should not be having any kind of religious thinking in their political administration. In that case, how dare even you can accept the demands of a religious institution, Islamic religious institution called Ulema. You want Ulema to remove RSS from the Maharashtra, where the great Savarkar has given us life for this country. And tomorrow this Ulema will also tell that remove Ganapati Mappa, Nimarjan, remove Inki Agaman Yatra. So you are ready to accept that also. So it means that जो शंभाजी महाराज के पीठ पीछे चूरी बोके उनके साले साहब, ऐसी आप वही हिंदू हो जो मुगल और अंग्रेज के साथ मिल गए हो और भारत को खत्म करने पे तुले हो। तो बस हमको यही कहना है सारा महाराष्ट्र से, भाइयों, हमको केवल जिताना ही जिताना पड़ेगा, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाना पड़ेगा। ये बात इसीलिए कह रहे हैं हम कि आज तक, I would only want to tell one thing that
Congress leader Rashid Alvi has urged the Election Commission to seek responses from BJP National President JP Nadda on Congress National President Mallikarjun Kharge regarding the speeches of Union Home Minister Amit Shah and Congress leader Rahul Gandhi. Alvi's statement comes in the wake of controversial remarks made by both leaders during recent political campaigns. चुनाव आयोग ने नड्डा जी और खड़गे जी से अमित शाह और राहुल गांधी के भाषणों पर जवाब मांगा, उसके लिए समय भी दिया गया है, आपका क्या कहना है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से नोटिस दिया गया है वो तो एक फॉर्मेलिटी है। इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने वाला। इलेक्शन कमीशन अगर कार्रवाई करेगा तो कांग्रेस पे करेगा, राहुल गांधी पर करेगा। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री उनके दबाव में काम कर रहा है। इसलिए बैलेंस बनाने के लिए बीजेपी को नोटिस दे दिया है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर कार्रवाई होगी तो हमारे खिलाफ होगी। यानी कि सर कोई वो जो नोटिस दिया गया उस पर कोई कार्रवाई? अगर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी होती तो सो मोटो कर सकता था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ, जो नारे लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटेंगे। वो खिलाफ कर सकता था प्रधानमंत्री के, जो कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो कर सकता तो फडणवीस के खिलाफ, जो कह रहे हैं कि धर्म युद्ध करेंगे। क्या ये इतने सारे बातें जो कही जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपने कान बंद कर रखे हैं? जी सर, यूपी जो आपने उन्होंने कहा कि हमें बचपन में सिखाया गया था कि एकता में शक्ति है, हम एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अगर बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। क्या कहना है सर? देखिए, वो एक एक्ट्रेस है जो पॉलिटिकल नेता बीजेपी के बोल देते हैं, उसी को वो सपोर्ट कर देती है। उनको कोई सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जी सर, जिसने भारत के विभाजन की नींव रखी थी और अलीगढ़ में रखी थी, आज समाजवादी पार्टी भी वही कर रही है जो उन्होंने किया था। योगी जी को इतिहास नहीं मालूम है, न शायद उन्हें पढ़ने का शौक है। उन्हें पूरी मालूमात होनी चाहिए। जो देश के बंटवारे की बात टू नेशन थ्योरी सावरकर जी ने दी थी, टू नेशन थ्योरी हिंदू महासभा ने दी थी, मुस्लिम लीग ने बाद में दी है। लेकिन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन दोनों से न अखिलेश यादव का कोई ताल्लुक है, न कांग्रेस का कोई ताल्लुक है। हिंदू महासभा के नेताओं को अगर कोई नेता मानता है तो वो बीजेपी के लोग मानते हैं। इसलिए बंटवारे की जिम्मेदारी अगर है तो आपके ऊपर है। कांग्रेस मुस्लिम Chandramouli Kumar, Consul General of India in Lagos, spoke on PM Modi's visit to Nigeria. He expressed optimism that this visit will be a significant milestone in fostering stronger relations between India and Nigeria, given the large Indian diaspora residing in various parts of the country. Chandramouli Kumar said in Nigeria, the number of the Indian community is largely in different parts of Nigeria. People have registered in large numbers and we expect thousands of them to come to see PM Modi. We hope and we believe that this visit will be a milestone in India-Nigeria relations. इवेंट जो हो रहा है कम्युनिटी इवेंट, उसके बारे में बताइए, क्या कितने कुछ लोग आएंगे, क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, नाइजीरिया में भारतीय समुदाय बहुत विशाल है और भारतीय समुदाय किसी एक जगह पे नहीं है और नाइजीरिया के सभी प्रांतों में है। मुख्यतः लागोस में, अबूजा में, कानो, कदूना, पोर्ट हारकोट, ये सभी जगह से लोगों ने रजिस्टर किया है यहाँ पे आने के लिए। और भारतीय इंडियन कल्चरल एसोसिएशन है सब जगह पे, उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन इकट्ठा किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हजारों की संख्या में लोग आएंगे अपने प्रिय नेता इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुनने के लिए। किस तरह की तैयारी की है उन लोगों ने? खास लोगों में उत्साह आपने देखा होगा, जो सोशल मीडिया पे कुछ वायरल आपने देखे होंगे वीडियो जो नाइजीरिया के लोगों ने बनाया है मोदी जी के स्वागत में। इसके अलावा आप पूरे शहर में देख रहे होंगे कि भारतीय समुदाय और भारतीय संस्थानों ने बड़े बड़े बिलबोर्ड और पोस्टर लगाए हैं मोदी जी के स्वागत में। अदम्य उत्साह है उनके आगमन के प्रति और हम लोग ये आशा करते हैं और विश्वास है कि भारत और नाइजीरिया के संबंध में एक विशिष्ट आयाम होगा ये
उनका द्विदिवसीय दौरा। सर, इस विजिट को लेकर काफी उत्साह तो है ही है लोगों में। आप पॉलिटिकल उससे किस तरह से देखते हैं कि देखिए, नाइजीरिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और भारत विश्व की तीसरी सबसे उभरती इकोनॉमी बनने जा रही है। दोनों के बीच में काफी समता है और एक ही तरह के पॉलिटिकल सिस्टम से वो आगे बढ़े हैं। एक ही तरह की विषमताएं भी हैं यहाँ पे। तो भारत जैसे अच्छी इकोनॉमी को डेवलप करने में सक्षम हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि हम नाइजीरिया के लिए एक अपना अच्छा सहयोग दे पाएंगे उनको आगे बढ़ने में, और हमारे देश के लिए ये पॉलिटिकली भी, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने बहुत ही जोर दिया है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। उनकी वर्चुअल समिट हुई, नाइजीरिया ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो एक ना विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ की बातों को उठाने के लिए भारत और नाइजीरिया के बीच अच्छे संबंध एक बहुत ही आवश्यकता है। तो हम आशा करते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिदृश्य में ये एक अच्छा मौका लाएगा। Continuous heavy rainfall in Thoothukudi, Tamil Nadu has led to significant waterlogging across several parts of the city. Local residents reported disrupted daily life as the street roads and low-lying areas were inundated, making travel difficult. The downpour, which has lasted for several days, has overwhelmed drainage systems, causing severe flooding in urban areas. Authorities are working to clear the water and mitigate further disruptions, but many areas remain affected. The continuous rains have also raised concerns about the possibility of further complications, including traffic snails and waterborne diseases. The district administration has urged citizens to remain cautious and follow safety guidelines during the ongoing adverse weather conditions. SV villagers from Samarvata, located in the Dioli Nyara Assembly constituency in Rajasthan, have demanded compensation for the losses incurred during an incident related to the recent bipole. The local community has raised concerns over damages and is seeking redressal from the authorities. बताएं अपना। रामगढ़ जी, उस दिन जो हुआ था उसके बाद अब शांति है, गांव वाले अब क्या चाहते हैं? गाँव वाला तो यही सारी जगह एडम कोर्ट यहाँ को यही रब चाहिए, नहीं जाने चाहते हैं। अच्छा, अब गांव में शांति से उनकी रात में उनकी बात कहीं सोच रहे थे? उनको बाद में तो कहीं को नरेश ने उठा ले जा, फिर सुबह ऑटो से पकड़ ले गया, वो वापिस आ गयो। वापिस आता हूँ गाँव वाला तो खाई कोई नहीं खाने की, उठा गयो स्कूल के मायने सुनने पकड़ ले गया। वो जी या पता को ना कट्ठा पूछाए कट्ठा न पूछाए, छोड़ियो ने छोड़ियो। गांव में जो नुकसान हुई जो के लिए गांव वाला कहीं चाहो से? गाँव वाला जो मौजूद साहब नहीं रियायत साहब नहीं इलाज के लिए पैसे चाहिए। ए बना दोषी मारा गया, पुलिस ने करा के अंदर आदमी बाहर निकाल मारा जे, घर में धक्का दे गए, कुआड़ खोल पकड़ बाहर मारा जे। मारा नाम प्रेम से। वो दिन रात में काई जो कतरो डर लाग्यो और अब काई माहौल से? बहुत डर लाग्यो, खूब आने गोलियां चलाई छे,
वहाँ गोलियां का बापा का मारे में आंदा वो डका क्या क्या पड़ा उठा पड़ा माथा पे तो लुगड़ो नरियो माथा पे खान जावा गुआड़ी में बूट दिया कुंडिया लगा दी 12 की तो मेरू गुआड़ी के लिया लगा दी गुआड़ी में सब मैं तो मेरे लिया लगा दी और के बम छोड़ दिया फिर मैं खा खड़ाऊ मसू गुआड़ी कुंडिया लगा दी। अच्छा, अब गांव का घरा पर ताला लाग रहा है गया लोग बाग भगवान ने तोल कना उनिया रे गया खट गया कोई कोने बच्चे कोने या खर्चे का उठाऊंगा अब का मेरे गया कना खटी बुलाया जिया गया। लोग आए हैं, क्या देखा है, अब क्या आप मांग कर रहे हैं सर? मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले बात तो यहाँ शांति है कहाँ पे। यहाँ पे पुलिस का जिस तरह से जो खौफ बना रखा है पुलिस ने, पुलिस के यहाँ पे कोई ना कोई नुमाइंदा आता है और उनको ये कहता है अभी तो 25 लोगों को हम गिरफ्तार करेंगे और 50 लोगों को गिरफ्तार करेंगे। इस तरह का जो माहौल बना रखा है, पूरे गांव के लोग अभी वो कहाँ पे है कहाँ नहीं है उनका कोई पता ही नहीं है, सब लोग गाँव से बाहर है। यहाँ पे आप इन गलियों में आप देख रहे हो, ये जो लोग है इनमें से कुछ तो बाहर के लोग है। यहाँ पे तो ये 2-4 ये हमारी जो माताएं खड़ी हुई है, यहाँ पे इनको फिर धमकी मिल रही है। अभी एक पुलिस का एक कर्मचारी आता है और यहाँ बैठता है सिविल के अंदर और वो कहता है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी आगे और बहुत कुछ होगा। इस तरह की जो धमकी दी जा रही है तो माहौल ठीक नहीं है। अभी पूरा पुलिस प्रशासन का आज भी इन लोगों के ऊपर खौफ बना रखा है। अगर पुलिस अपना रवैया या तो ठीक करे, नहीं तो अब ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से जो इनको झूठी धमकी दी जा रही है और जिस तरह से ना कोई इन्होंने ये कोई चोर लुच्चे लफंगे कोई चोर है के जो जिस तरह से इनको कह रहे तुम्हारे को गिरफ्तार करेंगे, किस चीज में गिरफ्तार करेंगे भाई? ये है इन्होंने क्या किया ऐसा? इन्होंने Uttar Pradesh Minister Om Prakash Rajbhar has weighed in on the upcoming by-election, stating that they typically favor the ruling party. He argued that the public understands the practical implications of an opposition victory, pointing out that if the opposition claims victory while not being part of the ruling party, governance would be affected. Rajbhar further emphasized that in a democracy, all candidates are technically winners until the results are officially declared. Noting the electorate's keen awareness of the political dynamics at play, he also highlighted that historically the ruling party tends to have an upper hand in by-election outcomes. हम कटेहरी ही नहीं, हम आपके मजमा भी, अलीगढ़ की खैर, संभल की कुंदरकी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हम 9 सीट पर अपना कार्यक्रम पार्टी का वोट दिलाने के लिए कर चुके हैं और कटेहरी और मजमा में क्योंकि पूर्वांचल की सीट होने के नाते ज्यादा हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं। और बाई इलेक्शन देखिए सत्ता पक्ष का होता है, जनता भी जानती है कि विपक्ष जीतेगा तो ये यही बोलेगा कि कोई काम लेके जाएगा तो कि सरकार हमारी नहीं है तो हम क्या करें, और विपक्ष भी जानता है कि बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष ज्यादा जीतता है। लोकतंत्र है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक सब लोग जीतते हैं, जितने लोग लड़ते हैं। लेकिन अगर देहात की भाषा में अगर हम कहें तो सत्ता पक्ष के तरफ से जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो विकास रूपी दूध देगा और जो विपक्ष के लोग लड़ रहे हैं वो ठाठ गाय लेके घूम रहे हैं जिसको वो दूध नहीं देगी। तो जनता इस नाते चाह रही कि दुधारू गाय को जिताओ ताकि दूध मिले। ठाठ गाय जिता के क्या करोगे जब चायो नहीं मिलेगा। इस नाते जनता बहुत जागरूक है और हम तो मजमा में भी देखे, कटेहरी देख रहे हैं, आपके कुंदरकी भी देखा, सब जगह हम घूम के देख रहे हैं। क्योंकि 5 साल लगातार समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही, तो 4 बार की सरकार में इन लोगों ने दलितों को धोखा दिया, अतिपिछड़ों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया, किसी को तो छोड़ा नहीं। सरकार मिलने के बाद वोट देने वाले लोग भूल जाते थे, सपा को अपनी जाति याद आती थी, उनके नेता को। तो ये बात जनता में बड़ी तेजी से फैल गई है, जिसका खामियाजा कि नाराज होकर के जो सरकार बनाता है 48% वोट है, ये वोट कल तक सपा बसपा कांग्रेस के साथ था, इनका साथ छोड़ के बीजेपी के साथ खड़ा है। तो लड़ाई अब वो लोग मानते हैं, हम लोग लड़ाई नहीं, हम लोग संघर्ष पर विश्वास करते हैं। और मैं एज ए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष
हमारी पार्टी के महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका पटेल हों, राष्ट्रीय टीम के सभी नेता गांव-गांव चौपाल लगा रहे हैं। 100 आदमी, 200 आदमी, 300 आदमी, 50 आदमी, उनके बीच में जाकर के प्रतिदिन कटेहरी में और मझवा में, कटेहरी में कम से कम 60 से 65 चौपाल एक दिन लग रही है और वही करीब 50-55 चौपाल मझवा में लग रही है। तो अब हम लोग अगर वहां 100 का भी रेशियो मानेंगे तो 6000 तो ऐसा हो गए। तो 6000 लोगों के बीच में बराबर हम लोग प्रतिदिन वार्तालाप यहाँ कर रहे हैं। 5000, 6000, 4000 लोगों के बीच में हमारी पार्टी बराबर लोगों के बीच में बात कर रही है। जो सरकार की पॉलिसी है, सोलर पैनल लगा के फ्री बिजली देने का, जीरो पॉवर्टी के जो योजना लागू हुई है, जैसे उसमें आवास, शौचालय, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, बिजली, रास्ता, निःशुल्क शिक्षा, तो ये सुविधा जो देने जा रही है सरकार, जो कानून बन गया है 5 लाख रुपए बिना ब्याज का नौजवानों को रोजगार देने के करें और ब्याज सरकार देगी, एक अतिशयोक्ति मतलब एक अनूठा सा काम सरकार कर रही है। तो ये चीजें जब जनता के बीच में बताई जा रही है तो जनता बहुत खुश है कि नहीं भाई हम लोग वोट देंगे। ऐसा लोग बड़ी संख्या में, अब आप समझ लीजिए यहाँ हम लोग लगभग 2 महीने से, हालांकि काम तो हम लोग 3 महीने से शुरू किए हैं, हम अकेले चले जाते हैं जो पार्टी संगठन है अलीगढ़ जाके वहाँ मीटिंग करके चौपाल की भी बता देते हैं करके, और सभा करके बताते रहते हैं। चाहे मुरादाबाद हो, गाजियाबाद हो, हर जगह हम जाते हैं, वो लोग चौपाल लगाते हैं, हम जाके सभा करते हैं और ब्रीफ करते हैं। खुद लग करके एक दिन भर हम लोगों को लेके, नेताओं को खुद चौपाल लगाते हैं कि देखो ये ऐसे करना है, तो कर रहे हैं। Balasubramanian, India's High Commissioner to Nigeria, has expressed optimism that Prime Minister Narendra Modi's upcoming visit to Nigeria will further strengthen bilateral ties and enhance cooperation on global issues. Speaking to the media, Balasubramanian highlighted that this marks PM Modi's first trip to West Africa, underscoring Nigeria's importance as both the most populous country and one of the largest economies on the continent. He pointed out the significant role of over 200 Indian companies which have invested more than $27 billion in Nigeria, making them the second largest employers after the Nigerian government. Balasubramanian also reflected on the historical relationship between India and Nigeria, noting that India had established its diplomatic presence in Nigeria as early as 1958, 2 years before Nigeria gained independence. He emphasized the long-standing strength of both the political and economic ties between the two nations. That was the first opportunity for President Tinubu and Nigeria to be present on the platform of G20, for which they are very thankful to the Indian Prime Minister. During that visit, President Tinubu and Prime Minister Modi had extensive discussions reviewing the bilateral relationship. This visit of our Prime Minister would be a follow-up visit and would certainly consolidate the relationship between the two countries. Sir, what will be his schedule, the Prime Minister Modi in Nigeria? Prime Minister Modi arrives in Abuja tonight, and tomorrow morning he starts his official engagements. His first engagement would be through a ceremonial reception by the guards at